Hi everybody, good afternoon. Okay, I see almost everybody there. Okay, well, let's begin. Can somebody confirm if I'm clearly audible, screen visible? Okay, seems good. Okay, people, let's begin. I think everybody has joined in now, and screen visible. Everything you are giving all signals to go ahead. Anything were you able to pull off yesterday? We talked a lot about what did we talk about? We talked about that Titanic hackathon, the data set there. We talked about tuning the cutoff probability and getting the model right. We saw that yesterday, right? The same model, just due to a wrong cutoff, can make many mistakes. So we balance those mistakes into positive and negative class. We are calling them sensitivity and specificity. So I think pretty much done. Voice is cracking. Okay, this seems like. Is it still not clear? I see this as common feedback. Now is it clear? Okay, give me a moment. Give me a moment. I will drop off and join back. Okay, so you guys can stay. Guys, hi again. Is it any better? Can you please confirm? Okay, sounds good. Very fine. Very fine. So this you were doing Titanic dataset yesterday. The code is with you. You must have run. You must have played around with. If you are not done, I would advise you to do it as soon as possible.
come into this practice. And finally, we have took out our submission. We have taken out our submission file. यहाँ से हमने राइट कर ली थी और वो कहाँ गई होगी, वर्किंग डायरेक्टरी में. ओके, आई विल कम टू दिस. देखें कुछ हुआ है क्या. यू सी दैट मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में देयर इज अ सबमिशन फाइल है. देयर इज अ सबमिशन फाइल एंड हाउ इट इज. ये वही है जो हमने राइट किया थे, जस्ट 2 कॉलम, पैसेंजर आईडी एंड सर्वाइव. ये किए क्यों थे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जहाँ डेटा देखा था आपने, जहाँ से डेटा डाउनलोड किया था ना, यहाँ पर उन्होंने दिखा रखा है, ये देख रहे हो कि सबमिशन किस फॉर्म में होना चाहिए. दे आर कॉलिंग इट, आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग इट जेंडर सबमिशन. इट इज सिंपली सबमिशन. और वो फाइल उन्होंने कैसी दिखाई है, यहाँ से डाउनलोड करके आप देख भी सकते हो. इट शुड बी अ CSV फाइल. It should have these 2 columns, passenger ID and survive, in this syntax. Passenger ID like this and 0110, your prediction. That's it. तो सबमिशन अगर इसी फॉर्म में होगा तो सबमिट हो पाएगा. इफ इट इज डिफरेंट तो सबमिशन फेल हो जाएगा. वी हैव डन मैनी थिंग. और सबमिशन इज रेडी. लेट्स सी. मेरा स्कोर देखना है, देखना क्या किया मैंने. देखो प्रेडिक्शन तो मैं डाल चुका हूँ. देखें मेरा स्कोर कितना आता है. लेट्स फाइंड दिस आउट. तो यहाँ पर सबमिट प्रेडिक्शंस, देयर इज, you can submit 10 predictions per day, and here is the drop bar. My submission is red. There comes a tick mark. It means format wise it is okay. It does not mean that मेरे predictions are ठीक. And here it gives you, a space to write briefly about maybe, so that you can recall that what model. So it was logistic model with 35% cutoff. So that I remember when I have made several submissions, so that I know which score came by what model. And here goes the submission. Well, submission is complete. It is telling me my score is 0.72 something something. Let's see where do I stand on leaderboard. So here is the leaderboard. Where am I? अरे मैं कहाँ हूँ, ये रहा. Here I am. अच्छा, मैंने कोई और प्रेडिक्शन भी किया होगा, वहाँ पर मेरी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, तो वो वाला स्कोर दिखा रहा है. माई बेस्ट स्कोर it was 0.74. Current score it is not better than this, तो वो बेटर स्कोर भी दिखा रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट माई रैंक इज, हाँ जी क्या है, 179. 179.
ना, ये 3 डॉट देख रहे हो उसके आगे? एक्चुअल एक्चुअली इट इज 17,000 समथिंग। ओके, let's know. Let's see the silver lining here. What is the silver lining here? You are ahead of many more. देख रहे हो ना बाकी लोगों के स्कोर? आप बहुत सारे लोगों से अच्छे हो, बहुत सारे लोगों से बेटर भी किया है आपने। You see this, there are people जो सबमिशन ही नहीं डाल पाए, there are people who are doing poorly, there are people who are doing survived non survived by head and tail. You see how many you people we have crossed. So we have done fair enough. And then there are, let's see, the toppers. हाँ जी, स्कोर देख रहे हो? Perfect prediction. No, don't worry about them. Most of them are cheaters. This is perfect prediction, which is too good to be true. 100% perfect prediction आना, this should be where you should become suspicious. It should raise concern. You should become skeptical about these things. In this case, these are the people. Most of them are cheaters. They have taken actual survival or disease data because it is Titanic, it is public, so anybody can find it out, and they have uploaded that by putting that into that CSV file. Nonsense people. ठीक है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मेरे स्कोर से अच्छा करोगे कुछ? विल यू ट्राई? गिव इट अ ट्राई। नहीं, तुमसे ऊपर वाले सब नहीं, मैं कह रहा हूँ जिनके परफेक्ट प्रिडिक्शन आए हैं उनके, उनमें से भी मोस्ट ऑफ देम आर चीटर्स। तुमसे अच्छा, तुमने तो स्कोर ही नहीं देखा अपना, करके तो देखना। यू हैव सीन वन ब्रांच ऑफ मॉडल्स, तो एक तरह से सबमिट करते हैं, करके देखते हैं। तो दिस वाज वन स्ट्रीम ऑफ मॉडल्स जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ज्योमेट्री बेस्ड। यार रिग्रेशन मॉडल्स आपने कैसे देखे हैं? ज्योमेट्री बेस्ड थे। अरे ज्योमेट्री तो बन रही थी, 2 डायमेंशन बनेगी तो एक्स एंड वाई, एन डायमेंशन में बनेगी तो इमेजिनरी होगी, दिखेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया इज ज्योमेट्री बेस्ड। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? लीनियर रिग्रेशन से, कि कहीं पे एक स्कैटर प्लॉट आएगा, उसे फिट करने के लिए हम कोई फंक्शन ढूंढ लेंगे, वो फंक्शन तो हमें मिला नहीं, जब वो नहीं मिला तो हमने सोचा लाइन ही फिट कर ले। ऐसा ही था ना? मान लो लाइन ही है ये फिलहाल, गलत हो गया मुझसे। सो दिस इज बेसिकली ज्योमेट्री। तो इनको ज्योमेट्री कह देते हैं, या कभी कभी इसको बोल देते हैं, कहीं लिखा मिल गया तो घबराना मत उससे, डिस्टेंस बेस्ड, वो भी यही है।
या वंस यू हैव डन दिस विद ज्योमेट्री, तो उसके बाद आइडिया क्या था कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाने चाहिए। यही आइडिया था ना, आइडिया यही था ना, डिस्टेंस मिनिमाइज करना। So sometimes you will see people calling them distance based, या maybe more specifically Euclidean distance based। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? वही ज्योमेट्री पे दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस देख रहे हैं उसको यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज वन लाइन ऑफ मॉडल्स विच आर ज्योमेट्री बेस्ड। लीनियर रिग्रेशन आप देख चुके हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख चुके हो, आगे भी देखोगे। ज्योमेट्री बेसिस में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। द मदर एल्गोरिदम इज द लीनियर रिग्रेशन हर्सल। बाकी सारे वहीं से डिराइव हुए हैं, अभी आप देखोगे आगे एलडीए है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, दे ऑल कम फ्रॉम दिस ज्योमेट्री थिंग। देन देयर इज अनदर लाइन ऑफ मॉडल्स विच आर कंडीशंस बेस्ड, हम कहते हैं जिनको। कंडीशन बेस्ड कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड कहते हैं, या मोर कॉमनली ट्री मॉडल्स भी कहते हैं। ट्री मॉडल्स नाम सुने हैं? किसी ने कभी बोला हो तुम्हारे सामने डिसीजन ट्री, डिसीजन फॉरेस्ट, नाइव बेस, किसी ने कभी नाम ले दिया हो गलती से? हम्म, आज सुनेंगे, चिंता मत करो। See, what is the idea behind them is ज्योमेट्री इन्वॉल्व होने की वजह से इन मॉडल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं? आगे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी, मिल जाएंगे वो भी तुम्हें आपको आगे। लेकिन बाकी तो तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये दो तो तुम देख चुके हो। क्या प्रॉब्लम हुआ था इनमें, क्या क्या लिमिटेशन थे, मैंने डे वन ही बता दिया था रिग्रेशन एनालिसिस में। व्हाट आर द कंसिडरेशंस व्हिच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट व्हेन यू आर डूइंग सम रिग्रेशन मॉडल, बी इट लीनियर और बी इट लॉजिस्टिक, जो भी कर रहे हो। बैंग ऑन। नंबर वन, since they are geometry based, they will be very sensitive to outliers। यहाँ पर अगर एक आउटलायर हुआ, ऐसा ऐसा कोई आउटलायर दिख हो गया यहाँ पे, ये इस लाइन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। करेक्ट? देन देयर वाज स्केलिंग। बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग वेरिएबल अगर अपने अपने स्केल में काम करते रहे, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अनदर प्रॉब्लम, मल्टीकोलिनियरिटी। अगर टारगेट वेरिएबल से आपके वेरिएबल्स का रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन हुआ, इफ दे आर कोरिलेटेड अमंग देमसेल्व्स, तो मेरे मॉडल को ये समझ नहीं आएगा एक्चुअली इंपॉर्टेंट कौन सा है। देन कम्स इज कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को ऐसे डील नहीं कर पाएगा, डमी बनाना पड़ता है उसको। देन देयर इज हेटेरोसेडास्टिसिटी। दिस वन इज, एंड आई मीन इट, दिस वन इज रियली यू नो a headache। If you have a data, how do you ensure that it is not heteroscedastic? ज्योमेट्री तो दिख नहीं रही, पता कैसे चलेगा कि हेटेरोसेडास्टिक है भी कि नहीं है? और अगर गलती से है तो करोगे क्या? तो देयर आर सेवरल कंसिडरेशंस जो लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स को
एंड इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो ज्योमेट्री बेस्ड या डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम को इम्पैक्ट करते हैं. देन व्हाट आर दीज कंडीशन बेस्ड या प्रोबेबिलिटी based models? Where do they fit in and how do they work? So we are going to discuss decision tree today. So it is the most basic model in these lines in this branch of condition probability based models. Decision tree model या simply tree model. देखते हैं कि कैसा काम करता है ये कैसा काम करता है. बहुत ही सिंपल आदमी है ये वैसे ही काम करता है जैसे हम करते हैं. ये कोई डिसीजन लेता है ऑन बेसिस ऑफ अ ट्री ऑफ चॉइसेस. जैसे हम लेते हैं, हम कैसे लेते हैं. से बिफोर दिस कोविड-19 सिचुएशन हम लोग क्या कर रहे थे, तुम भी मैं भी सुबह उठे, शावर ले लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है ना. नाउ सोच रहा हूँ शर्ट कौन सी पहननी है आज. देयर आर टू चॉइसेस, व्हाइट या ब्लू. यस और नो. ऐसा तो हुआ है सबके साथ. लड़के बता सकते हैं, व्हाइट और ब्लू का कंफ्यूजन तो हमें अक्सर होता है. यस और नो. बाकी सब में चॉइस क्लियर है. व्हाइट ब्लू ये कंफ्यूजन हो जाता है. चलो शर्ट तुमने कहा चलो व्हाइट, तो अगला क्वेश्चन आया ट्राउजर कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक या ग्रे. मे बी अगेन यू चोज ग्रे. दो चॉइस, ट्राउजर ग्रे हो गई. अगला क्वेश्चन आया तो शूज कौन से होने चाहिए, ब्राउन या ब्लैक. एंड सो ऑन. What I mean to say is, our entire life is a series of decisions. Yes or no? सुबह उठते ही शुरू हो जाता है. शर्ट देखी व्हाइट के ब्लैक, व्हाइट के ब्लू, व्हाइट हो गई तो ट्राउजर कौन सी, ब्लैक या ग्रे. चलो ग्रे पकड़ ली. तो शूज कौन से, ब्राउन या ब्लैक. अब भी तुम्हें चैन कहाँ. अब तुम तैयार हो गए हो, अब घर के बाहर खड़े हो तो अब सोच रहे हो आज मेट्रो ले लूं कि कैब ले लूं. अब भी चैन नहीं आ रहा ना हमें. अगेन अ डिसीजन, खुद ड्राइव करके चला जाऊं या कैब ले लूं या मेट्रो से चले जाऊं. एंड ट्रस्ट मी, एटलीस्ट इन दिल्ली जो भी डिसीजन लोगे तो उसे ही पछताओगे. वही ऐसा लगेगा गलत गलत ले लिया आज तो. So, right, and this is not okay. Let's come to this. If you pay attention to every next decision, in a way depends on the previous decision. अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं ट्राउजर सोच रहा हूं कि ब्लैक या ग्रे, वो तब सोच रहा हूं जब शर्ट आया, व्हेन आई हैव ऑलरेडी चोजन व्हाइट शर्ट. थिंक अबाउट इट. हैड इट बीन दैट आई चोज ब्लू शर्ट, तो शायद ग्रे और ब्लैक मेरी चॉइस भी नहीं होती, मैं कुछ और ही सोच रहा होता. मे बी आई वुड बी थिंकिंग दैट हाँ ट्राउजर छोड़ो जीन्स ही पहन लेते हैं. मे बी कुछ और ही चलता है मेरे दिमाग में, बिकॉज यहाँ डिसीजन कुछ और हो गया है. यस इट हैपन्स.
इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना है। तो ईच नेक्स्ट डिसीजन इट इज डिपेंडिंग ऑन के प्रीवियस स्टेज में क्या डिसीजन हुआ है, एंड दिस प्रीवियस डिसीजन डिपेंड्स ऑन कि इससे प्रीवियस डिसीजन क्या हुआ है। So this is a series of conditions which are intertwined. There is a typical example. This is a very nitty-gritty example, okay, very crude one, but there is a typical example to this, a classic one, by the way. और ये तो तुमने सबने ही देखा है। हाँ जी, याद आया हो जीवन का पहला डिसीजन, पहला बड़ा डिसीजन, ये तुम हो, ये तुम हो, 10th करके खड़े हो और समझ नहीं आ रहा कि आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, है ना? देयर कैन बी 3 डिसीजंस, मे बी मोर, उससे अलग भी कुछ हो सकता है। मैं तो घर से भाग जाऊंगा। हाँ, मैंने तो ये भी सोचा था खैर। तो तुम रहने देना। खैर, तुम्हारे मतलब से 3 दिखा देता हूँ। आर्ट्स ले लें या कॉमर्स ले लें या साइंस ले लें। हाँ जी, हुआ था ना ये। और एक अंकल आए थे, वो पापा को समझा गए थे, है ना, कि साइंस दिला दो इसे, बहुत स्कोप है। और आजकल वो दिखते भी नहीं है आसपास, क्योंकि पूछ लोगे ना तुम, अंकल कहाँ है इसको, कहाँ फंसा के गए हो? एनीवे, साइंस ले ली तो भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। मैथ्स या बायो, computers या physical, and then there are yes, now options begin. Yeah, now there are options, अब डिसीजन लेने पड़ेंगे। साइंस में सपोज मैथ ले ली, और मैथ्स ले लो, मैथ्स लेके फिर दो चॉइस है, मैथ्स ले ली 12th हो गई, अब सोच रहे हो क्या, अब सोच रहे हो क्या कि बीटेक कर लूं या बीएससी कर लूं, और इधर चल देते हैं, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, मास्टर्स करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। दूसरा चॉइस क्या चल रहा है कि बीटेक कर लेते हैं, कंपटीशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है जी, तुमने फिर ले लिया बीटेक, बीटेक लिया, अगेन दो डिसीजन, जॉब करनी है कि बिजनेस करना है। अगर जॉब करनी है तो जॉब करने शुरू करते हैं 3 साल बाद, 3 इयर्स डाउन द लाइन, अब जॉब स्विच कर लें या एमबीए कर लें। हाँ जी, यही कहानी चली आ रही है ना, यस और नो? जो लोग जॉब में हैं 2-3 साल से, वो तो बता देंगे इसको। You know how common and how predictable lives are currently. लाइफ में इट बॉइल्स डाउन कि हम देंगे, हाँ जी, हम देंगे कैट, कैट में रैंक अच्छी आई तो हम जाएंगे आईआईएम, कैट में रैंक नहीं आएगी तो हम जाएंगे हिमार्टिकस। हाँ, तो वहीं बैठे हैं सर। ऐसी ये कहानी आज तक की।
what I meant to say is what what you have seen throughout is 10 थी तो choices, उसके बाद 12 में पहुंचे, then there are different choices. लेकिन ये कब हुआ है? ये कब हुआ है? जब यहाँ 10th के बाद you chose science. तो यहाँ पर आकर तुम्हें चॉइस क्या मिले कि मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है। अगर यहीं पे ये डिसीजन तुम कॉमर्स ले लेते तो समझ रहे हो, अब मैथ्स और बायो नहीं सोच रहे होते, अब शायद कुछ और चल रहा होता। अब शायद क्या चल रहा होता कि मैथ्स लेना है, अकाउंट्स लेना है या बिजनेस स्टडीज लेना है या जो भी है, काइंड ऑफ है कोई कॉमर्स वाला बताएगा। नाउ इट इज नेक्स्ट सम अदर डिसीजन नाउ इट इज गोइंग ऑन। यहाँ पर भी देखो, अगर मैथ्स ली थी तब ये चॉइस आपके उसमें आ रहे थे कि ये आप लोगों ने एआई ट्रिपल ई देना है या जी देना है या क्या देना है, जे डबल ई देना है कि एआई ट्रिपल ई, ये सब चॉइस कब थी जब यहाँ पर मैथ्स ले लिया। अगर यहाँ पर बायो ले लेते तो शायद नीट की बात कर रहे होते, कुछ और बात कर रहे होते, नीट देना है ना, एम्स का फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, फिर कुछ और चल रहा होता। तो ईच नेक्स्ट डिसीजन विल डिपेंड कि उससे प्रीवियस स्टेज में डिसीजन क्या होगा। वाओ, थॉरो, इंटेंस, बढ़िया। अब इसे दूर से देखूं, इसे दूर से देखूं, तुम्हारे जीवन को, अपने जीवन को, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। इधर जाते तो शायद ये चॉइस होती, उधर जाते तो शायद ये चॉइस होती, सारी चॉइस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चॉइसेस होती हैं। देखने में कैसा लग रहा है? इट इज लुकिंग लाइक इन्वर्टेड ट्री, which begins at a root. So this is root, not Christmas tree. It is inverted tree kind of. Ulta vraksh. So that's why we are calling it tree, and there are decisions going on. So this is the idea behind decision tree model. कि अगर इस तरह से मैं डिसीजन कर पाऊँ, कैसे? सपोज माई डेटा हैज 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, थिंक अबाउट इट, एंड देन देयर इज टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल में क्या बताना है मेरे को? 0 और 1। अगर इसी तरह से मेरा कोई एल्गोरिदम ये देख पाए, क्या देख पाए कि देयर आर 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे टेस्ट कर लो वेरिएबल 1 कि भाई ये 50 से ज़्यादा होता है या कम होता है। चलो माना जो भी है, ये एज मान लो कि एज 50 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा है तो इधर जाओ, 50 से कम है तो इधर चले जाओ। फिर कोई दूसरा वेरिएबल मुझे ये बता दे, वेरिएबल 2, कि अच्छा ये ट्रू होता है तो इधर चले जाओ, और ये फॉल्स होता है तो इधर चले जाओ, एंड सो ऑन। और ऐसे करके फाइनली ये केस स्ट्रीम में डिवाइड करते हैं इनको, लाइक अ फ्लो चार्ट। लास्ट में क्या आ जाए मेरे पास डिसीजन कि टारगेट वेरिएबल, यहाँ अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो टारगेट वेरिएबल 0। अगर ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, इस तरह का पाथ बन के ये कंडीशन सारी ट्रू हैं तो टारगेट वेरिएबल 1 कर दो। ठीक है, काइंड ऑफ कंडीशन आफ्टर कंडीशन, एंड इट इज चेकिंग लाइक ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो इधर चले जाओ, फॉल्स है तो इधर चले जाओ, फिर दूसरी कंडीशन टेस्ट कर दी दोनों तरफ, एंड फाइनली इट इज गिविंग डिसीजन इन फॉर्म ऑफ द टारगेट वेरिएबल 0 and 1. So this is the crude idea behind decision tree. थोड़ा बहुत टपक आ गया। हम्म। एनीबडी एल्स? कोई क्वेश्चन क्वेरी तो नहीं है अभी? I have sent you a data set. Please check this out.
I have sent you a data set. Download it. Download it and read it in R. You know, keep it in different folder and set your working directory properly. And you know that it clean environment, clean history. So I'm showing you. You don't need to code everything by yourself. I will keep dropping code every now and then. ठीक है? अगर रीड आप लोगों ने कर लिया होगा, रीड भी ऐसा करो, मैं ही कोड दे रहा हूँ, अदरवाइज यू विल चेंज वेरिएबल नेम्स एंड इट विल ग्लिच. सो डू इट लाइन बाय लाइन. मेरा कोड देखते रहना एंड फॉलो माय स्क्रीन. मीनवाइल don't code by yourself, otherwise variable names will change and it will trouble somewhere. Very well, here we go. So it is this kind of data set. What is this data about? Can you see? Read कर लिया होगा तो I have dropped in the chat box. We have read a data into a variable, into a data frame called, we are calling it. It contains these types of variables. Anji, actually this is data of some patients. Specifically, there are 270 patients, maybe of a hospital, and they are keeping their data. They are recording their age. Okay, verifying age is essentially a number, continuous variable. They are calling their gender. Now gender is 0 and 1. You know the drill. The 0 and 1 is not 0 and 1. It is male and female. Actually, now we don't know which is which. Whether 0 means male or female. Well, by popular convention, 0 should be male. Males are usually 0. Then there is pain type. What do you think it is? Pain type is going like 432, 324, 144. What is this? That is something you see. We saw that in Christian framework also. When we are not very, when we are not very well versed in this industry which we are dealing with, these kinds of mistakes are but natural. Pin type here. Now, how can I tell you? Because I know from where this data came. I have gone through the dictionary and all kind of things. This pain type is not intensity of pain. ऐसा लग सकता है देखने में कि that this is level of pain in some manner. No, it is not that. This pain type is categories 1, 2, 3, 4. It is mentioning that what is the kind of pain the patient is complaining about. Is it muscular pain? Is it a chronic pain, thumping pain, pinching pain? You got the gist? अरे होते हैं ना ये सब तरह के हुए हैं हमें कभी ना कभी. So this is in that way category of pain. So here again, what is important to note is this 1, 2, 3, 4 is not 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not that type. Got this numeric value of these 1, 2, 3, 4 does not mean anything. They are simply categories. So again, categorical type. So that's what I wanted you to notice. Now there are other BP, cholesterol. हाँ जी, ये तो continuous होते हैं. Blood pressure, cholesterol level, blood test में. Then there are several, specifically to this domain.
FPS, resting ECG, एक्सरसाइज एंजाइना, ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री में हो सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी, कैलोस्कोपी। एंड फाइनली वी हैव वेदर हार्ट डिजीज इस पेशेंट को है या नहीं है, यस और नो। पेशेंट को हार्ट डिजीज डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा डेटा है। ठीक है जी, बढ़िया। इंस्टॉल 2 पैकेजेस, वन इज आर पार्ट, अदर इज आर पार्ट डॉट प्लॉट। इंस्टॉल कर लीजिए ये दोनों पैकेजेस। Meanwhile, I'll take care of a few things in this dataset. कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। This dataset does not have missing values, which I have already checked. However, structure अच्छा नहीं है इसका। Yes or no? स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो ये 2 पैकेजेस आप इंस्टॉल करके डाल दीजिए। तो लेट्स करेक्ट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। हमने अभी देखा है कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं which are looking like numbers but actually they are not numbers. So what I am doing here is I am converting all those variables into categories. So I have simply marked the column number 2, 3, 6, 7, 9, those अभी देखा था ना हमने, बहुत सारे रीडिंग ऐसे थे which are just categorical. Gender, pen type, then there were others, FPS, this and that. तो उन सबको मैंने as factor change कर रहा हूँ with the help of sapply. Seems okay? Here in the chat box, कर लीजिए copy paste. I have just written in different lines for the sake of readability. Otherwise, you can write in single line. If I check the structure, so structure seems good enough. What do you want me to repeat, मनीष? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी, जस्ट डेटा रीड किया है। डेटा जो अभी देख रहे थे आप, अभी देखा था ना यार, इसमें कई सारे वेरिएबल्स ऐसे थे लाइक दिस, ये नंबर्स में है, इनका स्ट्रक्चर नंबर में है, तो दिस शुड लुक लाइक कैटेगोरिकल। तो उनको मैं फैक्टर या कैरेक्टर में जिसमें भी चेंज करूँ, फैक्टर में कर लो, कैरेक्टर में कर लो, किसी में भी कर लो। कैरेक्टर में कर लिया फिलहाल। स्ट्रक्चर चेक करते हैं, स्ट्रक्चर सीम्स गुड इनफ नाउ। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर इन एज कैरेक्टर्स। मूविंग अहेड, मिसिंग वैल्यूज चेक करते हैं। सो मिसिंग वैल्यूज एक्चुअली है नहीं। ठीक है जी, और सारे चेक्स आप कर लोगे। यू नो द ड्रिल, क्या क्या चेक करना होता है, मालूम है ना? तो मैं सारे करके नहीं दिखा रहा हूँ। आपको मालूम है क्या क्या करना होता है? केस मिसमैच, डुप्लीकेट चेक, मिसिंग वैल्यूज। लेकिन लेकिन
देखो ये चीज़ें तो वो हैं जो इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर बिगर एनोमलीज। इनमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता। कहाँ लगाना होता है? अगर डुप्लीकेट है, यू चूज यूनिक, खत्म हो गया। मतलब हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। सेम गोज फॉर केस मिसमैच। तो ये चीज़ें तो वो हो गई। लेकिन जो चीज़ें ज्योमेट्री की वजह से मेरे को ठीक करनी पड़ रही थी अभी तक, पे अटेंशन टू दैट। आउटलायर, स्केलिंग, डमी वेरिएबल, दिस एंड दैट। समझ रहे हो मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम डूइंग नन ऑफ दैट। आई एम डायरेक्टली गोइंग अहेड विद अ मॉडल। सी टूल्स, सेट सीड, ओके, स्प्लिट रेशो 75-25 कर लेते हैं चलो। ट्रेन डेटा, वैलिडेशन डेटा, यू नो दिस ड्रिल ऑल टुगेदर, यस और नो? ये सब तुम्हें मालूम है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कुछ खास बताना है। तो कोड यहाँ तक का हेयर इन द चैट बॉक्स। डन, डन सो फार। So let's attach this R part library, R part. So attach this R part package. R part stands for recursive partitioning. So decision tree को recursive partitioning भी बोल दे कोई तो you should not be surprised. Syntax कैसा है? वैसा ही जैसा बाकी सबका होता था। R part, the formula is हार्ट डिजीज कॉलम है ना आपके डेटा सेट में, टारगेट वेरिएबल वही तो है। द टारगेट कॉलम नेम इज हार्ट डॉट डिसीज। तो टारगेट तो ये हुआ। टिल्डा डॉट, टिल्डा डॉट यानी बाकी सारे, वो तो पता है तुम्हें। और कौन से डेटा से? ट्रेन डेटा से मॉडल बना। Here in the chat box, we are calling it tree model, recursive partitioning, heart dot disease, tilde dot, data is equal to trend, all hunky dory. And if we check summary, it runs like anything. You see, tree model is a list of 15 elements. ऐसा ही कुछ आया होगा आप लोगों का भी। इसका समरी कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है। इसका समरी दुनिया भर की बातें आ रही हैं। इतनी बातें आ रही हैं कि काबू में नहीं आ रहा।
लेकिन हम अपने काम की चीज़ें देखते हैं, हमें क्या क्या पता चल रहा है, इट इज़ कॉलिंग इट, ये तो कॉल हमेशा बताता ही है वो कि किस फॉर्मूला किस कमांड से मॉडल बना है, किस कमांड से बना है। देन इट इज शोइंग यू समथिंग सीपी एंड स्प्लिट रेल एक्सरर। अभी स्टे विद दिस, छोड़ दो इसको, जो बस समझाना चाह रहा हूँ वो दिखा देख लो। इट इज टेलिंग यू वेरिएबल इंपॉर्टेंस, कौन सा वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रिडिक्शन में। इट हैज गिवन हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू आई थिंक पेन टाइप, ऐसा ही कुछ आया होगा आप लोगों का भी, मेरे ख्याल से मोर और लेस ऐसा ही कुछ आया होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा तो शायद कहीं बाद में जाकर के किसी एक दो वैल्यू में डिफरेंस आ गया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वैल्यूज मस्ट बी देयर इटसेल्फ, यही दिखा रहा है। सो इट इज टेलिंग यू विच वेरिएबल इज हाउ मच इम्पोर्टेंट। पहले आपने पहले भी देखा था ना, पी वैल्यू से दिखाता था कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो सीधे सीधे ये तो बता ही रहा है कि इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये भी पता चल रहा है। तो यू कैन कंपेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ टू वैल्यूज, साउंड्स गुड। नाउ वेल, then there is plethora of information which is not very intuitive, so that's why we had another library that was जो आपने इंस्टॉल किया था, rpart.plot, and rpart.plot contains a function prp. What's it? It is because CA tools package attached नहीं है आपके उसमें environment में. Sample split is a function of CA tools package. That's why error. CA tools ये वाला ये रखा. Check this out, PRP. What happens? PRP stands for, RPart stands for recursive partitioning. PRP stands for plot of recursive partitioning. What do you see? You got the tree? कैसे आया ट्री? उसने कंडीशन ली पेन टाइप, कि पेन टाइप 1 2 या 3 इन तीन कैटेगरीज में हो, अगर yes, so convention will be always this will be when this condition is true, this condition is yes or true, तो इधर चले जाओ लेफ्ट हैंड पे, if this condition is false तो राइट हैंड पे, फॉल्स हो या नो हो जाए तो राइट हैंड पे, सो हर स्टेप पे कंडीशन यही रहेगी, गेटिंग द आइडिया। तो उसने क्या कहा, पेन टाइप 1 2 या 3 है, ओके, तो अगली कंडीशन क्या टेस्ट करो, एसटी डिप्रेशन 2 से कम है क्या, 2 से कम है तो इधर चले जाओ, पूछो जेंडर 0 है क्या, और जेंडर भी 0 है तो बोल दो हार्ट डिजीज नहीं है। डिसीजन समझ गए, पहली कंडीशन सही है, ओके, पेन टाइप 1 2 या 3 में से कुछ था तो इधर चले गए, लेकिन यहाँ पर आकर देखा एसटी डिप्रेशन इज ग्रेटर देन 2, ओके इतना बहुत है, पेन टाइप 1 2 या 3 हो जाए, और उसका जो डिप्रेशन टेस्ट किया है, जो भी हमने ये एसटी रीडिंग ली है, वो अगर 2 से ज़्यादा आ गई है तो बोलो हार्ट डिसीज है। डिसीजन, पहली कंडीशन फेल हो गई, पेन टाइप 1 2 3 नहीं था, पेन टाइप था 4, तो अगली डिसीजन क्या किस चीज़ पे करना है, मे बी फ्लोरोस्कोपी, ओके, तो फ्लोरोस्कोपी टेस्ट देख लो, फ्लोरोस्कोपी 0 आती है क्या, फ्लोरोस्कोपी 0 आती है तो अगली कंडीशन पे चले जाओ, फ्लोरोस्कोपी अगर 0 नहीं आई, ओके इतना बहुत है ये बताने के लिए,
पेन टाइप 1 2 3 भी नहीं था, और फ्लोरोस्कोपी 0 भी नहीं था। हार्ट डिजीज डिटेक्ट हो जाएगा इस पेशेंट को, प्रेडिक्शन, डिसीजन एंड सो ऑन। ठीक है, यू गॉट सम fair idea here. So depending upon several things, it has solved so many problems. Now tell me a few things. तुमने डमी वेरिएबल नहीं बनाया कैटेगोरिकल को, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल ही है। कारण कैटेगोरिकल को डील कर सकता है, देखो कर ही रहा है। आपको ज्योमेट्री नहीं बनानी, कैटेगोरिकल को डील कर लेना है। जेंडर मेल है तो इधर चले जाओ, जेंडर फीमेल है तो उधर चले जाओ, सिंपल। पेन टाइप 1 2 3 है तो इधर चले जाओ, पेन टाइप 1 2 3 नहीं है यानी 4 है तो उधर चले जाओ, सिंपल। सही बात है। ये आपको वेरिएबल इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा है, इसने समरी में भी दिखाई थी। चलो समरी में तो हमने कहा कि इतना मजा नहीं आया समरी देख के इसका, लेकिन आई थिंक यहाँ देख कर तो बड़ा मजा आ रहा है। आई थिंक डिसीजन ट्री इज बाय फार द मोस्ट lucid and most explainable model. Yes or no? You can explain this to a layman, or even a layman. If somebody is not technical, somebody is not handy with data analysis, जो कुछ भी नहीं पता, उसे भी समझा पाओगे कि ये डिसीजन तुमने ये प्रेडिक्शन कैसे किया। हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन में ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इसकी होती है, इनकी सेकंड लेवल वालों की, थर्ड में थर्ड हाईएस्ट आ गए एंड सो ऑन। और प्रेडिक्शन कैसे कर रहा है ये, इस तरह से ये कंडीशन चेक की, ट्रू एंड फॉल्स, यस है तो इधर जाओ, नो है तो इधर जाओ, फिर अगली कंडीशन, यस है तो इधर जाओ, नो है तो इधर जाओ, एंड फाइनली डिसीजन। यस और नो? इजंट इट वंडरफुल? चलो लेट्स सी हमारा प्रेडिक्शन कैसा आता है, आओ देखते हैं। तो वी आर कॉलिंग इट प्रेडिक्शन ऑफ हार्ट डिजीज। प्रेडिक्ट, हाँ प्रेडिक्ट फंक्शन देख चुके हो, मॉडल हिस्ट्री मॉडल, डेटा इज वैलिडेशन, ये तो देख चुके हो तुम कई बार। बट इस बार जो आउटपुट आया है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें आउटपुट में, राइट? डिफरेंस कैसा है? आपके वैलिडेशन डेटा में देयर आर 25% ऑफ रूट, दैट इज 68 ऑब्जर्वेशंस आई थी। और मैं अगर क्लिक करके देखूं इसकी हार्ट डिजीज का प्रेडिक्शन जो आया है, व्हाट इज इट? दिस प्रेडिक्शन इज, ये उसी बताई तो उसने प्रोबेबिलिटी ही है, लाइक दिस। वैलिडेशन डेटा की फर्स्ट रो, ओरिजिनल डेटा की 13th रो थी वैसे एक्चुअली। कह रहा है नो होने का चांसेस 90%, यस होने का चांसेस 09 समथिंग समथिंग परसेंट। समझ गए क्या बता रहा है? लॉजिस्टिक मॉडल सीधे बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस होने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू, ये दोनों भी बता रहा है। हालांकि मेरे को दोनों से मतलब नहीं है फिलहाल, मेरा इंटरेस्ट किसमें है? यस कैटेगरी में। सही बात है, तो वही करते हैं हम। मैं क्या कहता हूँ, या सीधे ही ले लेते हैं। हाँ, सामने आने देते हैं।
थिंक अबाउट इट। मैं क्या कह रहा हूँ, वैलिडेशन में सीधे कॉलम बनाओ प्रेड एच डी, जहाँ मेरा डिसीजन आएगा 0 1, नहीं 0 1 नहीं, इन दिस केस, नॉट इन दिस केस 0 1, बिकॉज मेरा टारगेट वेरिएबल यहाँ पर 0 1 नहीं, मेरा टारगेट वेरिएबल कैसे लिख के दिया है मेरे डेटा में फिलहाल, यस और नो करें। तो या तो मैं इन्हें कन्वर्ट करूँ, पहले यस और नो की जगह 0 और 1 में लेके आऊँ, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज एल्गोरिथम इज डिसीजन ट्री। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर डिजीज के, हाँ जी कहाँ चले जाओ, कॉलम 2 पे। कॉलम 2 कौन सा था, यस वाली प्रोबेबिलिटी। अरे है कि नहीं, यही तो देखा था अभी। मैं कह रहा हूँ दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दीज प्रोबेबिलिटीज, इन पे कट ऑफ लगाना है। तो दूसरा तो अपने आप ही पता है। तो मैंने बोला इसके कॉलम नंबर 2 पे चले जाओ, 50 से ज्यादा है तो यस बोल दो, 50 या उससे कम है तो नो बोल दो। ये तो हर बार करते हो तुम। हियर इन द चैट बॉक्स। नाउ डू इट बाय योरसेल्फ। यहाँ तक कोड मिल गया आप लोगों को, जरा देखना इसकी कॉन्फिगर मैट्रिक्स कैसी आएगा। कैन यू फाइंड दिस आउट कि कॉन्फिगर मैट्रिक्स कैसी आएगा और क्या करना चाहिए उसको कुछ बेटर बनाने के लिए। ट्राई इट आउट, देखो अपने आप करके आप। हाँ जी, एवरीबॉडी डन। डू यू रियलाइज कि क्या करना है इसका कॉन्फिगर मैट्रिक्स में, कुछ सही हुआ है कुछ गलत हुआ है, कुछ कर सकते हो आप। हाँ जी, कट ऑफ 25% के आसपास रखते हो तो थोड़ा सा और बैलेंस आ जाता है। ये देखा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स आया सबसे कि नहीं।
देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने 50% कट ऑफ लिया, 50% कट ऑफ से, और मैंने देख लिया, तो ओके, आई वुड से दिस इज यू नो नॉट वेरी बैड। सेंसिटिविटी इज 80, स्पेसिफिसिटी इज 84। यू सी द बैलेंस्ड एक्यूरेसी जो वो दिखा रहा है, इट इज 82%। सो ऑल इन ऑल नॉट बैड। हाउएवर, अभी भी 4% का गैप है, विच कैन बी स्टिल बैलेंस्ड। कंसिडरेबल गैप है इतना, 4% इज 4% is enough to you know enough to demand an extra effort. So what you have done is 25% लेकर के देखा। Now we are, let's hit and try. That's only thing possible. What is that only thing possible? बताता हूँ। जब 25% ले लिया आपने, when you kept it 25%, what do you think? Now sensitivity is 86, specificity is 84, balanced accuracy is 85. So this seems a, हाँ जी, पहले से बेटर है। पहले से तो कहीं बेटर है। अरे स्पेसिफिसिटी उतनी की उतनी, 84 की तो थी पिछली बार। सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई 6% अचानक, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। गैप कम रह गया, बैलेंस हो गया मॉडल। तो दिस सीम्स लाइक अ गुड आइडिया, बट हाउ डू यू हिट एंड ट्राई? क्या यही करते रहेंगे, 50% देखेंगे फिर कुछ और देखेंगे, फिर ये कब तक चलेगा? एंड माइंड यू, तुम तो शायद आप 2% 5% करके देख रहे हो। मेनी टाइम्स यू विल नीड टू डू इट बाय 1%, नॉट ओनली 1 by 1, यू मे गो अप टू डेसिमल प्लेसेस ऑल्सो। कभी कभी आ जाता है इतना ज्यादा क्या, बट हाउ डू यू डू दैट? सी, तो दिस इज नाउ देयर इज नो, ये मत पूछना कि इसका लॉजिक क्या है। इट इज नॉट लॉजिक वाइज, इट इज, इसमें कोई ऐसा मैथमेटिकल लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला नहीं है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली सीन मैनी अ टाइम्स। ये जो प्रोबेबिलिटी आई है जिस पे आप कट ऑफ लगा रहे हो, यस की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं समरी चेक करूँ इस प्रोबेबिलिटी की, यही था ना, दिस वाज मैट्रिक्स जहां पर प्रोबेबिलिटी आई थी, उसका दूसरा कॉलम विच बिलोंग्स टू यस क्लास। आई एम चेकिंग इट्स समरी, इट इज दिस। तो इस समरी में उसने क्या बताया, मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी आदमी की उसने बताई है 0.02, 2% चांस है हार्ट डिजीज निकलेगा। अच्छा, किसी को उसने पूरे पूरे 100 नंबर दिए हैं, माई मॉडल इज 100% श्योर कि इसको हार्ट डिजीज निकल जाएगा। देन देर आर मीन एंड मीडियन। So what has been experimentally seen many a times is you choose the middle point of median and mean। यार दो ही बातें तो होंगी, या तो मीन बड़ा होगा या मीन छोटा होगा मीडियन से। So roughly take a median point, choose that and see if sensitivity is more than specificity or less than specificity. You can anyway, you can hit and try like that. Start off with 50% and then you can choose to do that. My point is you will get a very fair idea if you choose this middle point. Many a times it will be just bang on, कभी कभी गलत भी हो सकता है, यूजुअली ठीक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। इज दिस ओके? गुड सो फार? गुड सो फार? ओके, यस, नो, मे बी समथिंग, प्लीज।
देख लो ना यार, तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता मेरे किसी बात का। चलो दिखाता हूँ। ज्यादातर देन तुम 50% से, हाँ, कट ऑफ करो। मैंने क्या लिया है वही लिया है, मीडियन और मीन, इन दोनों का टोटल इतना होता है। मेरे को लेना है मिडिल पॉइंट, तो डिवाइड बाय 2, एंड मिडिल पॉइंट कम्स आउट टू बी 28। नाउ थिंक अबाउट इट, मैं एग्जैक्ट 25 पे नहीं पहुंचा हूं अभी, मैंने रखा 28, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेम सेंसिटिविटी, सेम स्पेसिफिसिटी, समझ रहे हो? 25 तक पहुंचने से पहले ही मिल रही थी कहीं पे। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। अगर मैं बहुत नीचे ले जा रहा हूँ कट ऑफ, लाइक 28 कट ऑफ इज बेटर देन 25, इन द सेंस 25 अगर कट ऑफ रखिए, आई एम बायस्ड, ज्यादा नीचे आ गई है कट ऑफ, तो जितना कम से कम डेविएट हो 50% कट ऑफ से, उतना अच्छा है, प्रोवाइडेड सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी में बैलेंस आ जाना चाहिए। तो वो बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बट वो बैलेंस जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, रादर देन डेविएटिंग वे टू मच। पक्का पक्का। ठीक हो गया यहाँ तक? बढ़िया। ब्रेक कर लें थोड़ी सी देर के लिए। एक अच्छा मॉडल, सिंपल मॉडल, और अच्छा प्रडिक्शन दे रहा है बिना ज्यादा मेहनत किए। Okay, let's break for a few minutes, just 5 minutes, okay? Not for very long. It is 3:50 almost by my clock. So let's break for 3:55. Let's break for 5 minutes. Just stretch up and have some water and be back in time. See you there. Hi again. Hope everybody is back. Just tell me quickly. Okay, so you people got a very fair idea how our decision tree is working. It is just like जैसे हम लोगों का कुछ होता है, एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जिस तरह से हमारे डिसीजन होते हैं, इसी तरह से डिसीजन ट्री भी डिसीजन ले रहा है। हाँ देख लो, ऐसे डॉक्टर तुम भी बनाओ अपने घर में, मैं भी बनाऊँ, यही करते हो ना? और फाइनली भाग के पैरासीटामोल खा ली। So this is altogether mechanism of decision tree, and it may go up to several levels. Now coming on to, so this is decision tree model, और जो आपने देखा, now what do you realize? Is there any advantage or advantages, as the case may be, of decision tree model over geometry based models?
Can you think of something? Very well. नंबर 1, कैटेगोरिकल डेटा को एज सच हैंडल कर सकता है। डमी वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। It can deal with categorical as variables as they are. Anything else? If you pay attention, हाँ जी, उसी की तो बात कर रहा हूँ, वही तो एडवांटेज है। नहीं क्या? देखो देखो दिखा रहा हूँ। सपोज इसने कंडीशन लगाई ये वाली, कोलेस्ट्रॉल 242 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ तो 242 होता है। अब या तो मैं इसे स्केल करूँ या ना करूँ, इसे क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं ज्योमेट्री तो बन नहीं रही यार। ज्योमेट्री में तो मुझे डर लगता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये तो ऐसे स्केल पे चल रहा है, 100, 200, 300, और यहाँ मेरा दूसरा वेरिएबल वो चल रहा है 1 2 3 4, तो ये छोटा रह जाएगा स्केल बहुत ज्यादा। देन आई वाज वरीड, यहाँ तो कोई ज्योमेट्री बन नहीं रही, क्या फर्क पड़ रहा है? इसके लिए की जरूरत नहीं पड़ी। और देखो, ज्योमेट्री में मेरी ज्योमेट्री डिस्टोर्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर डेटा में, अगर मेरा डेटा कुछ ऐसा था, लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन एक आउटलायर था, तो लाइन ऐसे चली गई उस आउटलायर को फिट करने की कोशिश। वही प्रॉब्लम थी डिसीजन ट्री में। देखो देखो देखो, उसने कोलेस्ट्रॉल पे कंडीशन लगाई है कि 242 से कम है तो इधर जाओ, 242 से ज़्यादा है इधर जाओ। नाउ थिंक अबाउट इट। सपोज इसकी रूटीन रेंज होती कोलेस्ट्रॉल की 100 से लेके 300 तक, ये रूटीन रेंज होती, एंड देन देयर इज एन आउटलायर 500। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 500 कोलेस्ट्रॉल नहीं होता किसी को, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एक आउटलायर था। रूटीन रेंज इतनी थी, एक आउटलायर भी था, होता रहे। मुझे तो अपनी कंडीशन से डिसीजन लेना है, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे कंडीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? उसने बोला 242, उसने किसी तरह से डिसाइड किया, अभी उस पे नहीं जा रहे कैसे डिसाइड किया। उसने 242 एक कंडीशन निकाली, डेटा में देख लिया होगा उसने कि इससे कम रहता है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल इससे कम है तो हार्ट डिजीज नहीं निकलेगा। ये हमारा डेटा, हिस्टोरिक डेटा दिखा रहा है। हाँ, इससे ज्यादा हो तो मेरे ख्याल से एक टेस्ट और करना चाहिए, तब पता चलेगा हार्ट डिजीज है कि नहीं। आउटलायर से क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा एडवांटेज है। इम्यून टू आउटलायर्स, इम्यून टू स्केल्स। और किसी ने तो बोला है कि, मोनिका ने बोला है इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर, नागिन ने बोला है व्हाई शुड यू ऑलवेज डिसीजन। अरे यार, ये वर्डिक्ट पे मत पहुंचा करो इतनी जल्दी से। आता हूँ, उस बात पे भी आता हूँ। वेरिएबल इंपॉर्टेंस दे रहा है इस ऑर्डर में, कितनी अच्छी बात है ना यार। रिग्रेशन में तुम्हें बस ये पता चलता था कि ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रिपल स्टार। इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हाँ जी, नहीं पता? अरे नहीं पता,
दोनों ट्रिपल स्टार हैं दिख रहे हैं, अब दोनों ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल तुम हटा के देखो। ये देखो, ये देखो, जिस बात पर सारे डिसीजन आगे डिपेंड कर रहे हैं, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ। जिस बात पे बाकी सारे डिसीजन डिपेंड कर रहे हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ ना लाइफ का। अरे रिमेम्बर, साइंस ली थी तभी तो बाकी सब कुछ हुआ था, और कॉमर्स ली थी तो फिर बाकी सब कुछ हुआ था। लेकिन वो तब हुआ था जब मैथ्स या साइंस ली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, आपका मॉडल बता रहा है यहीं पे, दैट पेन टाइप इज द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर। आई थिंक होता भी होगा हार्ट डिजीज के केस में, पेशेंट ने पेन किस टाइप का बताया है कि नहीं। बहुत कुछ उसी बात से समझ आ जाता होगा डॉक्टर। अगर मैं जाके खड़ा हो जाऊं कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, और डॉक्टर पूछे कि कैसा हो रहा है ना, इज इट फीलिंग लाइक नीडल, इज इट फीलिंग लाइक थम्पिंग। So you get the importance of variables in their order. बहुत सल जस्ट इन अ मोमेंट, वो इंटरनल मैकेनिज्म क्या है उसकी बात अभी आज तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं बताता हूँ, इफ टाइम अलाउस वी विल टॉक अबाउट इट। हाँ जी, और क्या प्रॉब्लम था, अरे और क्या प्रॉब्लम था, मल्टी कॉलिनियरिटी। ये प्रॉब्लम था, इसको नहीं होता। क्यों नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर आ गया होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं था बिकॉज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, वो कहीं नीचे चला गया होगा या होगा ही नहीं, मे बी ऐसा भी हो सकता है। देख रहे हो, इसने सारे वेरिएबल यूज नहीं किए हैं, आई हैड सम 12-13 वेरिएबल्स, इट हैज नॉट यूज्ड ऑल ऑफ देम। बाकी की जरूरत नहीं है उसको डिसीजन लेने की, जितने से उसका काम हो गया उसने दे दिया डिसीजन। और कोई बात, हेटेरोसेडास्टिसिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी अगेन, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्यों। हेटेरोसेडास्टिसिटी कब होती थी, कब होती थी, जब ज्योमेट्री होती थी, जब वो इमेजिनरी ज्योमेट्री में आपका स्कैटर प्लॉट एक रेंज के बाद जाके फैल जाता है। तो आपकी बेस्ट फिट लाइन कितनी भी बेस्ट फिट क्यों ना हो, यस और नो, आपकी बेस्ट फिट लाइन कितनी भी बेस्ट फिट क्यों ना हो, देख रहे हो, अगर ये इतनी रेंज में फैल गए हैं पे पॉइंट्स, तो डेफिनेटली एरर ज्यादा ज्यादा आने वाली है, देयर विल बी मोर एरर। योर डेटा इज, योर डेटा इज हेटेरोसेडास्टिक। हाउएवर, जब हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो हेटेरोसेडास्टिसिटी कहाँ से आएगी। फर्क नहीं पड़ता। इफ यू क्लोजली लुक, ये सारे एडवांटेजेस वो हैं, ये सारे एडवांटेजेस कौन हैं, ये वो हैं जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम में ज्योमेट्री की वजह से, उनका बेसिस ही ज्योमेट्री है, एंड व्हेन द होल आइडिया इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, तो यह सारी प्रॉब्लम, दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब मेरा मॉडल ज्योमेट्री बेस्ड नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, इट इज बेस्ड ऑन like a loop of if else if this happens true so then this, if this happens false then this, and this kind of, it is an kind of multiple conditions test in a series.
ज्योमेट्री नहीं आ रही, सो इट इज एंजॉइंग ऑल काइंड्स ऑफ एडवांटेज। कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में? एक क्वेश्चन आगे तक दिमाग में आ चुका है, बताऊं क्या क्वेश्चन है? ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये इतना ही अच्छा मॉडल है तो हम इतने दिन से बात ही क्यों कर रहे थे उनकी, ज्योमेट्री वालों की? उनमें अगर इतनी बीमारी है तो हम उनके बारे में बात ही क्यों करते थे ऐसे लोगों से? और हमारे पास जब ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर सीधे इसकी बात क्यों नहीं करते? लेट्स यूज डिसीजन ट्री बाय थंब रूल। नहीं, ये इतना अच्छा भी आदमी नहीं है, इसकी अपनी बीमारी है। इसकी अपनी बीमारी है, वो देखते हैं वो क्या है। एक्चुअली इसकी एक ही डिसएडवांटेज है मेजरली अगर बोलूँ तो, बट इट इज दैट बिग अ डिसएडवांटेज दैट उसकी वजह से इट दिस डिसएडवांटेज शैडोज ऑल अदर्स। चेक दिस आउट, दिस वाज, ये हमने मॉडल बनाया था ट्रेन डेटा से। ट्रेन डेटा में मैं अगर देखूं, हाँ जी, कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कितने पेशेंट्स का हमने डेटा देख के बताया था? ट्रेन डेटा कंटेन्स 202 ऑब्जर्वेशंस, तो 200 रफली मान लेते हैं। हमने अपने 200 पेशेंट्स का डेटा दिखाया इस मॉडल को, और ये मॉडल कुछ ऐसा फिट हो गया। Now I'm just giving you an example. I don't exactly know कि किस स्टेप में क्या हुआ है, but I'm just giving you one example. इसने टेस्ट किया पेशेंट टाइप, पेन टाइप 1, 2 और 3 है क्या नहीं है। 200 पेशेंट्स का डेटा है यहाँ पर, 200 पेशेंट्स पे उसने ये कंडीशन टेस्ट की कि पेन टाइप 1, 2, 3 है या नहीं है। नहीं है तो मतलब पेन टाइप 4 होगा। तो आई थिंक कुछ ऐसा हो गया होगा, शायद कुछ ऐसा हो गया हो। टेल मी, टेल मी। शायद 160 कस्टमर्स को पेन टाइप 1, 2, 3 निकल गया, तो ये डेटा पॉइंट्स इधर आ गए। बाकी 40 कस्टमर्स को पेन टाइप 1, 2, 3 नहीं था, उनको पेन टाइप 4 था, तो वो इधर चले गए। यस और नो? अगली कंडीशन, अरे उतने ही तो पेशेंट बचे अब अगली कंडीशन देखने के लिए। अगली कंडीशन क्या देखी इसने, कहा कि एसटी रीडिंग चेक कर लो। डिप्रेशन की एसटी रीडिंग, डिप्रेशन टेस्ट किया और एसटी रीडिंग चेक कर ले, एंड इफ इट इज लेस देन 2 तो इधर चले जाओ, ग्रेटर देन 2 तो हम डिसीजन बता देंगे। तो 160 डेटा पॉइंट्स थे। सपोज शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि 100 तो यहाँ पर आ गए, 60 इधर चले गए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन में कहता कि ये जो 100 आए थे इनमें भी देख लो जेंडर में मेल कौन है फीमेल कौन है। तो शायद 50 मेल्स इधर चले गए एंड बाकी जो फीमेल थी वो इधर चली गए, तो डेटा पॉइंट 50-50 हो गए। डू यू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग? I is in starting I had some data points. डिपेंडिंग ऑन द डेटा पॉइंट अगली कंडीशन के लिए उतना डेटा नहीं बचा जितना मेरे पास एक्चुअली अवेलेबल था। इस टेस्ट के लिए 200 डेटा पॉइंट्स थे, इस वाले टेस्ट के लिए शायद 160 रह गए, इस वाले टेस्ट के लिए उतने भी नहीं बचे, इस टेस्ट के लिए उतने भी नहीं बचेंगे, अगले टेस्ट के लिए उतने भी नहीं बचेंगे। गॉट द जिस्ट व्हाट इज हैपनिंग?
फॉर एवरी नेक्स्ट कंडीशन डेटा इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये जाता जा रहा है अगले लेवल पे, अगले लेवल पे, अगले लेवल पे। क्यों? क्योंकि वो फाइनली डेटा को कैटेगराइज कर देना चाहता है ये और नो में, उसे डिसीजन पर पहुंचना है ना। गेटिंग द जिस्ट? सो ये तो बहुत छोटा सा डेटा था, अदरवाइज डिसीजन ट्री बनता है 20 लेवल्स, 25 लेवल्स, ऐसे जाने लगेगा। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, एंड ऐसे करते करते कब तक जाएगा वो? और तब तक जाएगा जब तक वो इट इज नॉट कन्विंस से डिसीजन आ गया है। नहीं तो वो कंडीशन लगाते ही जाएगा, ये कंडीशन देख लो, वो कंडीशन देख लो, ये देख लो, वो देख लो। अब इसमें मत बोलना कि इसमें इतनी जल्दी डिसीजन क्यों आ गया, ये डेटा ही बहुत छोटा था। 200-300 लोगों का डेटा ही है सारा तुम्हारे पास। जस्ट इमेजिन अ डेटा सेट ऑफ सम 40,000 50,000 रोज। उसे कब दिखेंगे ये यस नो? जब वो एक एक रो पे पहुंचने के लिए ऐसे ही नीचे 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 जाता चला जाए। हाँ, तो अदर एंड पे क्या? अरे वहां भी तो यही हो रहा है। इस कंडीशन पे 200 पॉइंट्स अवेलेबल थे, ये ले अगली कंडीशन के लिए 40 डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इससे अगली पे पहुंचूंगा शायद 20 ही अवेलेबल होंगे, उतने भी नहीं बचे। उससे अगली पे जाऊंगा शायद 10 बचेंगे। तो दूसरे एंड पे भी वही हो रहा है, उधर भी क्या हो रहा है? मैं कौन सा कमाल कर रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट साइड और लेफ्ट साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल्स। इस लेवल पे कुछ डेटा अवेलेबल था, सेकंड लेवल पे वो डेटा अवेलेबल नहीं रहा, तीसरे लेवल पे और खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसे ये लेवल बढ़ते जाएंगे वो डेटा कम होता जा रहा है। डिसीजन ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, यू नो इट हैज अ टेंडेंसी। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? देयर इज अ प्रॉपर कीवर्ड फॉर दैट, देयर इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दैट। सुना है ना? नाम सुना है? ओवर फिटिंग। सो डिसीजन ट्री कीप्स अ टेंडेंसी टू ओवर फिट ऑन द डेटा। बहुत थोड़े से डेटा से लास्ट में इसके पास बहुत कम डेटा बचा होगा देखने के लिए। जस्ट इमेजिन आफ्टर 10 लेवल्स ऑफ कंडीशंस, इसके पास शायद बचे होंगे 4 डेटा पॉइंट। 4 पेशेंट्स का डेटा देखते हुए डिसीजन ले रहा है कि इन्हें यस बोलना है कि नो बोलना, या 10 डेटा पॉइंट्स का या 20 डेटा पॉइंट्स का, इस तरह से डेटा पॉइंट देख करके वो फाइनल डिसीजन यस और नो दे रहा है। डज इट सीम अ गुड थिंग? तो इस तरह से ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जाने की कोशिश करता है, तब तक जाने की कोशिश करता है जब तक इसको बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन ना मिल जाए, बिल्कुल एक एक रो पे छलनी ना लगा दे। एंड दिस टेंडेंसी इज स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। आपको कहीं ये भी पढ़ने को मिल सकता है दैट yes, decision tree algorithm is greedy learner. Can it got this so far? However, it enjoys ये advantages तो इसके हैं, no denying that, बट ये इसकी एक प्रॉब्लम भी है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमें आइडिया समझना चाहिए। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है बताएंगे? कैन somebody टेल मी, क्या तरीका हो सकता है इसको ओवरकम करने का?
थिंक अबाउट इट, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज ये कंडीशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अरे कंडीशन सारी, ये ट्री अपने आप ही तो लगा रहा है, मैंने तो कोड रन कर दिया। अरे समझ रहे हो, मैंने तो कोड रन कर दिया। उसने अपने आप चूज किया कि ये कंडीशन यहाँ पर ये होगी, फिर दूसरी ये होगी, फिर तीसरी ये होगी, और उसने ये भी देख लिया। वो अपने आप जा रहा है जितनी भी डेप्थ तक जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। थिंक अबाउट इट, अगर मेरे पास कोई तरीका ऐसा हो कि अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाए, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाएगा, तो आई थिंक काम हो जाएगा। मैं अगर कोई ऐसा तरीका सोच लूँ कि यार मेरा ये डेटा पॉइंट, चलो अगर ये 200 डेटा पॉइंट देख के डिसीजन लेता है बात ठीक है, 100 देख के ले रहा होता तो भी ठीक है, 50 देख के ले ले तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन ऐसे एक एक देख के तो ना ले कि एक देखूंगा, दो देखूंगा, चार देखूंगा। यार सिर्फ 4 पेशेंट देखे हैं कि ये सारी कंडीशन ट्रू हैं और उनको हार्ट डिजीज गलती से निकल आई, तो अब जीवन में सारे बाकी जितने भी आएंगे और ये कंडीशन ट्रू निकली, उन सबको हार्ट डिजीज बता दे सिर्फ इसलिए क्योंकि इन 2-3 को निकल आई थी। ये तो तरीका ठीक नहीं है। यस और नो? हाँ मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यार तेरे को 50 आदमी ऐसे दिख रहे हैं कि ये कॉमन पैटर्न था, या 20 आदमी दिख रहे हैं, इतने डिसीजन पे बात बन जाएगी, बट ऐसे अनलिमिटेड डेप्थ तक मत जाओ। बिल्कुल एक एक का डिवीजन नहीं चाहिए मेरे को। तो अगर मैं इसका डेप्थ कंट्रोल कर लूँ तो शायद काम हो जाएगा। ठीक है, यही करना है। अगर ये डेप्थ कंट्रोल हो गई तो शायद काम हो चला। और डेप्थ कंट्रोल करते हैं। Here in the chat box, there is a control parameter in rpart command. rpart command में control parameter है, and within control I am mentioning rpart.control function which controls this recursive partitioning जो आपने अभी बनाई थी। अभी वो अनकंट्रोल्ड थी, मैंने कुछ नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जा रहा है, जो भी कर रहा है वो जा रहा है अपनी डेप्थ तक जहां तक उसका मन है जाने का, डिफॉल्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। नाउ कैन आई मेंशन समथिंग हियर? यस आई कैन, एंड यू विल ट्राई सेवरल वैल्यूज। मैं क्या क्या मेंशन कर सकता हूँ? नाउ नाउ हियर इज समथिंग, योर होमवर्क बिगिंस, यू विल रीड अबाउट दैट। यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू समथिंग, से मैंने बोला मैक्स डेप्थ इज 3, देखना क्या होगा। मैंने बोला मैक्स डेप्थ इज 3 एंड लेट्स सी, क्या देखते हो आप पीआरबी में? समझ गए मैक्स डेप्थ का मतलब? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, खत्म। समझ गए? 3 लेवल्स तक जाएगा ट्री, उससे आगे नहीं जाने देना मेरे को। आई कैन कंट्रोल डेप्थ ऑफ द ट्री। So this is one parameter, next step. Then there are other parameters about which I want you people to read. So this becomes your uh, practice kind of thing for this coming week. What are the other parameters? One is min split. ये कहाँ से मिलेंगे? rpart.control की हेल्प आप चेक करोगे तो सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आप दे सकते हो, यू कैन गिव min split,
min split, if I am calling min split as say 30, then another one is min bucket, maybe I am calling it 10, कुछ भी जो भी दे रहा हूं मैं. अब ये क्या होते हैं, यू विल रीड बाय योरसेल्फ. ठीक है, एक तो ये पढ़ेंगे आप मेन स्प्लिट और मेन बकेट का मतलब क्या होता है, और ये कैसे ट्री को कंट्रोल करता है. अगर पढ़ते भी समझ नहीं आया तो बात करेंगे हम इसके बारे में. ठीक है, वी विल हैव अ डिस्कशन नेक्स्ट वीकेंड बिफोर डूइंग समथिंग. याद रहेगा ये. नेक्स्ट स्टेप very straightforward. Then there is something min split, and then there is something min bucket. You can use one of them, you can use two of them, you can use all three of them. You can be, it is your wish which one you want to control your decision tree. That is one. Now think about it. अगर ये डिसीजन ट्री कंट्रोल हो गया, चाहे जिससे भी हुआ, आपने देखा ये ओवरफिट होने की टेंडेंसी रखता है. ठीक है, हमने गालियां भी दी इसको, ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीडी लर्नर. हाउएवर उसका तरीका सोचा, हमने देखा मैक्सटर, हमने देखा मेन स्प्लिट, हमने देखा मेन बकेट. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर इसकी डेप्थ कंट्रोल हो गई तो ये प्रॉब्लम तो खत्म हुई. जो इसका ग्रेडी लर्निंग वाला वो था, वो तो तुमने कंट्रोल कर लिया इस बच्चे का, जो इसका ग्रेडी टेंडेंसी था. तो अब तो ये बहुत अच्छा बच्चा है. यस और नो? बाकी बातें तो बहुत अच्छी है इस बच्चे में. हाँ, यस मनीष, देयर इज अ ट्रेड ऑफ. सी, देयर इज अ ट्रेड ऑफ. मे बी अगले लेवल पे जाता तो शायद मेरा डिसीजन ट्री एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा था. अब मैंने उसको रोक दिया थोड़ा सा पहले, तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्यूरेसी a bit here. But that's where what you have to hit and try. इसीलिए अलग अलग तरह के पैरामीटर हैं. नेक्स्ट है मेन स्प्लिट, मेन बकेट. तो यू हैव टू हिट एंड ट्राई. पहले समझिए क्या क्या पैरामीटर है, एंड विद वेरियस वैल्यूज ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स हिट एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि ट्री कंट्रोल भी हो जाए और एक्यूरेसी मोर और लेस मैनेज हो जाए. खराब नहीं है, जरूरत से ज्यादा खराब नहीं है. ठीक है, इसका पता है एक और एडवांटेज है इसका, जो रिग्रेशन में नहीं था. मालूम है क्या? हाँ जी, रिग्रेशन में ये प्रॉब्लम आया था. आपका टारगेट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे. यस और नो? आपका टारगेट वेरिएबल अचानक कैटेगोरिकल हो गया, लॉजिकल हो गया, बाइनरी कैटेगोरिकल, बाइनोमियल. नाउ इट हैज टू कैटेगरीज, कॉन्टिन्यूअस नहीं है. तो हमने कहा अरे यार अब लीनियर रिग्रेशन तो काम नहीं करेगा, तो हमने हाथ पैर मोड़ के उसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाया. प्रॉब्लम अभी रह गई. व्हाट इफ माय टारगेट इज, हाँ जी, क्या क्या टारगेट वेरिएबल हो सकता है मेरा? कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, मल्टीनोमियल भी तो हो सकता है. रेड ब्लू ग्रीन, ए बी सी डी, स्पीशीज ऑफ आइरिस, सेटोसा वर्सिकुलर वर्जिनिका, 3 कैटेगरीज. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पास उसका जवाब तो है नहीं, वो तो लॉजिस्टिक है बेचारा, लॉजिकल वेरिएबल को डील करता है, लॉजिकल टारगेट. योर डिसीजन ट्री, द सेम एल्गोरिथम, इट वर्क्स फाइन फॉर continuous variable, binary variable, multinomial variable. In fact, you will do that also. I want you to try this on. एक तो डायमंड्स डेटा सेट ले लो, उस पे एक डिसीजन ट्री मॉडल बनाओ जो प्राइस प्रेडिक्ट करता है. ये तो देख चुके हो डायमंड्स वाले पे प्राइस प्रेडिक्शन.
So Diamond's price prediction with decision tree model ये आप करेंगे, and species prediction of Setosa of Iris, not Setosa. Even this with decision ये आप करके देखेंगे. ठीक है जी, छोटे छोटे काम है, कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है, मैं सबमिशन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करके देखेंगे ना. इफ यू डू इट राइट, अगले नेक्स्ट वीकेंड पे जब हम बात शुरू करेंगे, मजा आएगा उस डिस्कशन में. आई नो व्हाट यू विल फेस हियर. You will face some problem, you will face some you will get some insights, and it will be fun when we will come back together next weekend. So please do that. If you come down blank, you will lose the fun of it. ठीक है जी. Okay, very well guys. So let's call it a day. I think enough for one day. So bye. Take care. Happy weekends. Rest well. Return strong.